So first of all, these are some really very genuine comments from my subscribers on my YouTube videos. So आपके इन्हीं comments की वजह से मुझे रोज मोटिवेशन मिलती है कि मैं कुछ आपके लिए और बेटर करूं, हर दिन कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करूं. I would really like to thank all of my lovely subscribers and supporters जो मुझे मोटिवेट करते हैं. So आज की वीडियो बेसिकली है एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 2. अगेन अगर आपने सितंबर में एग्जाम बुक किया हुआ है देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, co-locations and everything you need to know in order to score 8 and plus in your writing task. So don't skip this video, must watch this video till the end. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? साइंटिफिक रिसर्च should be carried out and controlled by governments rather than private companies. Do you agree or disagree? Let me tell you one thing, ये जो same question है, it is in our मटीरियल, स्टडी मटेरियल लिस्ट. इसमें ये थर्ड आई थिंक फोर्थ नंबर पे ये क्वेश्चन है हमारी लिस्ट में. एंड ये सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स को 7th वाली सितंबर में एग्जाम में देखने को मिला था. And if you also want our study material, it is available, जिसमें हम आपके साथ listening, reading, writing, speaking and along with that some vocabulary and samples of some task 1 and task 2 हम वो भी आपके साथ share करते हैं. If you need this material, you can comment me and drop me a message on my WhatsApp number. So talking about today's question, ये question students को, काफी students को difficult लगा, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट था नहीं. सो लेट मी डिस्कस दिस इन डिटेल. तो सबसे पहले ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन इज द मेन फेस ऑफ योर एसे. एंड अगर आप आईबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो तो उनका फॉर्मेट हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम जनरल लाइन, देन उसके बाद आपने रीफ्रेस करना होता है, उसके बाद आपने अपनी पोजीशन को स्टेट करना होता है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट. तो इसी अकॉर्डिंग आईडीपी को फॉलो करके मैंने ये सैंपल आंसर जनरेट किया है. सो लेट्स लुक एट दिस सैंपल आंसर. सो introduction says scientific research plays a pivotal role, co-location, in advancing human knowledge, improving quality of life and solving global challenges such as climate change and disease control. So I have started with a very good general statement related to topic only. So उसके बाद just see how I have rephrased the question. अगर आपको भी question rephrase करने में problem आती है then इसको आप ध्यान से देख सकते हो. So a long standing debate exists regarding whether governments should oversee and control scientific research or whether private companies should lead these efforts. कि ये एक बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है कि सारी जो कंट्रीज को जो भी रिसर्चेस होती हैं या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आने चाहिए या प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने चाहिए. तो आप क्या एग्री करते हो? सो मैंने यहाँ पे लिखा इन माय ओपिनियन. जो भी क्वेश्चन आता है डू यू अग्री और डिसएग्री, मतलब अगर यू आ गया क्वेश्चन में दैट मींस इट इज एन ओपिनियन टाइप ऐसे और आपने इसमें अपना ओपिनियन लिखना है. In my opinion, while private enterprises bring innovation and funding to the table, government control is essential to ensure public welfare, ethical considerations and long-term sustainability. तो मैंने अपना ओपिनियन देके पोजीशन स्टेट करके मैंने थीसिस लाइन को इस तरीके से लिखा ताकि एग्जामिनर को ये शो हो जाए what I am going to write in BP1 and in BP2. So this is a 9-band introduction. So moving on further, Let's talk about body paragraph 1. इसमें obviously मैंने आइडिया क्या लिया है, obviously गवर्नमेंट के अंडर अगर रिसर्चेस होती हैं then this will be quite beneficial. So जब अगर हम शुरू करें, हमने शुरू हमेशा करना होता है from the main idea. Always start your body paragraph with your main idea. Let's see what I have written. So one key reason again the co-location, why governments should control scientific research is the focus on public interest. So सबसे पहले मैंने अपना मेन पॉइंट बता दिया कि मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों चूज किया, thus because of public interest. उसके बाद I have explained private companies often prioritize profit which may lead to the neglect of vital but less profitable research areas such as rare diseases or environmental conservation.
तो बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, जबकि ये ऐसा गवर्नमेंट के केस में नहीं होता। सो इस चीज में मैंने एक ना एंडिंग में इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझानी है मैंने, तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। So, government oversight, on the other hand, ensures that research is aligned with societal needs and benefits the greater good, not just specific shareholders. तो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर रिसर्चेज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दे आर अलाइंड विद दी सोसाइटल नीड, सोसाइटी को देख के वो अपना सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, government funded projects on renewable energy may have a broader societal impact than those financed by the corporations seeking short term gains। जो गवर्नमेंट के फंड्स के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, these are long, राइट, वो थोड़ा से एक्सटेंडेड टाइम के लिए हैं, वेयर एज इन केस ऑफ जो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, दे आर शॉर्ट टर्म। सो उसके बाद मैंने लिखा है, नॉट ओनली पब्लिक बेनिफिट इज द कंसर्न, confidentiality of experiments is the other crucial consideration। तो let's have a look सबसे पहले on the format of body paragraph for a 9 band essay, for a 6+ for a 7+ band essay। अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपके 7+ जरूर आएंगे। ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं पर होती है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता हाउ टू ऑर्गेनाइज बॉडी पैराग्राफ, एंड कोई भी सिखाता ही नहीं है फॉर 7 and above बैंड। इसीलिए आई हैव सीन कि किसी के भी 7+ बैंड इजीली नहीं आते। तो बेसिकली जो आईडीपी बोलता है, आईडीपी सेज कि आपने यूज करना होता है पीएल मेथड, पी फॉर पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में किया, देन ई फॉर एक्सप्लेनेशन जो हमने उसके आगे करा, देन ई फॉर एग्जाम्पल जिसको हमने एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करा, एंड इन द एंडिंग ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैरा, दैट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन बीपी2, उसका थोड़ा सा हिंट आपने इन द एंडिंग ऑफ बीपी1 देना है, which means transition to the next para। इससे क्या होता है, जो लिंक होता है बिटवीन बीपी1 एंड बीपी2 वो बहुत ही ज्यादा रिलेट हो जाता है, इजी लिंक हो जाता है। सो दिस इज हाउ आपने लिंक करना है और आपका बीपीएस का फॉर्मेट होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट वन थिंग मोर हियर टू नोटिस इज दैट यहाँ पर कहीं पर भी आई हैवंट यूज एनी रेगुलर फ्रेजेस लाइक moreover और furthermore, moreover, I haven't used anything, so furthermore भी मैंने कहीं पर यूज नहीं किया, additionally I haven't used anywhere। So instead of writing all these common phrases, आपने phrases यूज ही नहीं करने। अगर आप यूज करते हो तो आपने किस तरीके से करना है, जैसे मैंने इस लाइन में किया, गवर्नमेंट ओवरसाइट ऑन द अदर हैंड, मतलब वेरिएशंस के साथ आपने फ्रेजेस को यूज करना है। अगर आपने एक बार स्टार्टिंग में कर लिया, नेक्स्ट टाइम मिडिल में कर लो, उसके बाद आप एंडिंग में भी कर सकते हो। सो दीज 3 आर दी वेरिएशंस you can include in your phrases when adding or when writing your phrases। I hope till here I'm clear। So moving on to body paragraph 2। सो अगेन अब एक और बात, ज्यादातर स्टूडेंट्स को डू यू एग्री और डिसएग्री वाले ऐसे में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अगर क्वेश्चन डू यू एग्री और डिसएग्री का है तो आपने इसमें दोनों एग्री के बनाने हैं या एक एग्री का एक डिसएग्री का बना सकते हो। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर आपसे सपोज कर लो मैं पूछूं कि आप मेरे से कोचिंग लोगे या नहीं, यस और नो, या तो आपका आंसर ऑब्वियसली यस में होगा या तो आपका आंसर ऑब्वियसली नो में होगा। आप यस नो बोथ तो नहीं बोल सकते ना। इन दिस सिमिलर मैनर, if the question says do you agree or disagree, that means you have to go on only one side। या दोनों बीपीएस अग्री के लिखो या दोनों बीपीएस डिसएग्री के लिखो। सो इन दिस केस अगर हमने बीपी1 अग्री का लिखा है, गवर्नमेंट साइडेड का लिखा है, तो बीपी2 भी हमारा गवर्नमेंट साइड का ही बनेगा। So यहाँ पर what I have written again, starting with the main idea, main point. Another significant concern, again the co-location, is the ethical issues involved in the scientific research। ethical issues मतलब होता है बेसिकली भी जो चीज कॉन्फिडेंशियल है, जो चीज प्राइवेट है, जो चीज हिडन है, सीक्रेटेबल है, वो सीक्रेट ही रहे, उसको आउट नहीं करना है। तो आप इन अदर वर्ड्स एथिकल इश्यूज को कॉन्फिडेंशियलिटी भी बोल सकते हो, जिससे मैंने रिफ्रेश करके बीपी1 की मैंने एंडिंग करी थी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। तो उसके बाद I have explained how and why। So governments are better equipped to enforce ethical standards, regulate
potentially harmful experiments and promote transparency. तो जो उसके बाद private companies driven by competition, again just look at the way I have used phrase here. Private companies driven by competition, दोनों तरफ कॉमा आएगा यहाँ पे. May cut corners or conduct research without adequate public scrutiny. तो पब्लिक के स्क्रूटिनी के बिना वो जो है साइंटिफिक रिसर्चेस जो पब्लिक कंपनीज हैं वो करती हैं. सो अ नोटेबल एग्जांपल इज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री where the need for profit has sometimes led to the withholding of critical data about drug side effects. तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड कर दी. उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैन हेल्प अवॉइड सच इश्यूज बाय इंश्योरिंग दैट एथिकल गाइडलाइंस आर स्ट्रिक्टली फॉलोड. और जब आपने BP2 की एंडिंग करनी है, बट ऑब्वियस इसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन. तो हमने यहाँ पर लिंक कैसे करना है, यहाँ पर जो भी आपने आइडिया लिया ऊपर स्टार्टिंग में उसको ही रिफ्रेश करके देयरफॉर करके तो आपने उसको एंडिंग कर देना है, जैसे कि मैंने किया इस एग्जांपल में. If I talk about the conclusion, let's look at the conclusion. So in conclusion, although के साथ आपने यहाँ पे स्टार्टिंग करी, that means आपने एक कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे बना दिया. Although private companies contribute to scientific innovations and economic growth, scientific research should ultimately be controlled by the governments. मतलब आपने इसमें बेसिकली जब भी आप although वाला सेंटेंस यूज करते हो, आपने इसको कैसे यूज करना है, although के बाद आपने फर्स्ट व्यू फिर कॉमा डाल के अपना सेकंड व्यू. मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं साइंटिफिक इनोवेशंस को, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च है वो अल्टीमेटली इन द एंडिंग गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना चाहिए, जो कि जिस बारे में आपने ऐसे लिखा. दिस इज बिकॉज, फिर उसके बाद अपना रीजन बताया, गवर्नमेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन द पब्लिक गुड, जो हमने BP1 में लिखा, एंड आर एबल टू रेगुलेट एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो हमने BP2 में लिखा इफेक्टिवली. मतलब हमने समराइज कर दिया BP1 को एंड BP2 को. इन शॉर्ट, जो फर्स्ट लाइन ऑफ कंक्लूजन है, दैट मीन्स यू हैव रीफ्रेज सम योर आंसर हियर, कि आपने किस बारे में लिखा. उसके बाद BP1 में क्या लिखा, BP2 में क्या लिखा, उसको आपने समराइज कर दिया इन द सेकेंड लाइन. एंड कैन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दैट मे नॉट इमीडिएटली यील्ड प्रॉफिट्स. सो देयरफॉर उसके बाद आपने लिख दिया एक सजेशन, I believe government control is essential for responsible and sustainable advancement of science. तो इस तरीके से आपने लिखना है conclusion. Now one main important thing here to notice is that अगर आपने भी एग्जाम में ये चीज ऐड करी होगी तो आपके 7+ बैंड्स फॉर श्योर है. और वो चीज यहाँ पर अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, in my body paragraph 1 and in my body paragraph 2 both, दोनों में मैंने क्या किया है, I have made comparisons. जो मैंने यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज था उसको भी लेके कंपैरिजन किया, गवर्नमेंट को लेके भी मैंने बात करी. दैट मीन्स हमने ये दोनों कंपैरिजन लेके चलना था. अगर आपने कंपैरिजन के साथ लिखा है तो ऑब्वियसली इट इज ऑफ 7+ बैंड. BP1 भी एंड BP2 भी, जो भी हमने मेन आइडिया लिखा इसको हमने प्राइवेट कंपनीज के साथ कंपेयर करके लिखना था. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, भी प्राइवेट कंपनीज को करना चाहिए या गवर्नमेंट के अंडर ये चीज आनी चाहिए, तो आपने कंपैरिजन करना था. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव डेली वीडियोज ऑन IELTS.